हेलो इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसले की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि वी आर इन द एंड ऑफ द कोर्स। आप जानते हो 11.1 एक्सरसाइज चल रही है, उसके 6 सम्स हो चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 7th सम। हो कि जल्द से जल्द हमारा कोर्स खत्म हो जाए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और एग्जाम्स हम दे सके। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। 6 to 9 में हेडिंग में हमने देखा था कि इन ऑल सम्स वी हैव टू फाइंड पी ऑफ ई बाई एफ। वो हेडिंग में था 6 to 9 में। तो 6 हो चुका है, 7th आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। चलो उसके लिए क्या इवेंट्स है, क्या सैंपल स्पेस है। 2 coins are tossed once. 2 coins are tossed once. So what will be the sample space? For this, the sample space will be, see, ये फर्स्ट कॉइन की सिचुएशन है। इफ आई टॉस फर्स्ट कॉइन और 1 कॉइन, द आउटकम्स मे बी एच, मे बी टी। फॉर द सेकेंड कॉइन, सेम सिचुएशन। So total number of elements of sample space will be HH, HT, TH and TT. So n is equal to 4. Now we have two events E and F. चलो, what is E? Tail appears on 1 coin. Tail appears on 1 coin. यहाँ पे एक भी tail नहीं है, so नहीं आएगा। There is one tail, will come. There is one tail, will come. There are 2 tails, not come. So E has only 2 elements. These are HT and TH. So number of elements of event E is 2. चलो, for F. What is event F? 1 coin shows head. 1 coin shows head means head appears on 1 coin. 1 coin shows head. तो देखो यहाँ पे 2 coins shows head नहीं आएगा। 1 coin एक भी नहीं, तो यहाँ पर भी सिर्फ 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, HT and TH. So here also the number of elements of event F is 2. अब जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है तो इंटरसेक्शन तो वहां पे आएगा आएगा आएगा। सो वी विल फाइंड E इंटरसेक्शन F. E intersection F, that is HT and TH, means you can write E or F because E is equal to F, right? चलो, P of E. P of E, number of elements of event means 2. R is equal to upon number of elements of sample space is 1 by 2. P of F is number of elements of event upon number of elements of sample space is 1 by 2. P of E intersection F is equal to number of elements, यहां पर भी 2 by 4 is 1 by 2. Now P of E by F intersection of both in numerator, नीचे वाला नीचे, P of E intersection F is 1 by 2 upon P of F is 1 by 2. So it is 1, मतलब ये हो गई certain event, ये हो गई certain event. Clear point? चलो, उसका सेकेंड पार्ट, सैंपल स्पेस इज सेम फॉर दिस ऑल्सो। चलो, इवेंट E, कौन से एलिमेंट्स आएंगे? नो टेल अपीयर्स, भाई एक भी टेल नहीं है।
तो HH में नो टेल, one tail, so not come, over. It has only one element, so R is 1. F, no head appear, no head मतलब सिर्फ TT आएगा, so R is 1. Now for the conditional probability, intersection तो होना ही चाहिए, so R is equal to 0 because there isn't any element. चलो, now we are going to determine, yes, P of E by F is P of E intersection F अपॉन नीचे वाला नीचे. बोलो P of E intersection F क्या होगा, तो वो मुझे यहाँ पे निकालना था. चलो फर्स्ट P of E, what is P of E? R by N 1 by 4. P of F, it has also one element, so 1 by 4. P of E intersection F, that is 0 by 4 is 0. तो देखो P of E intersection F is 0 upon P of F, that is 1 by 4, but 0 upon something is 0, so it will be 0 forever. Clear point? See question number 8. A die is thrown 3 times. So what will be the sample space? देखो, अगर मैं एक die को 3 times throw कर रहा हूं, so the sample space will be like this: 1 2 3 4 5 6. First time में the sample space will be this. चलो, अगर मैंने सेकेंड टाइम उसको थ्रो किया तो सेम. चलो, थर्ड टाइम 1 2 3 4 5 6. So total number of elements will be 6 6 are 36, 36 6 are 216. So number of elements of the sample space will be 216. Right? Now we have two events E and F. Chalo, what is E? 4 appears on the third toss. What about first and second? What about first and second toss? तो देखो, फर्स्ट टॉस में कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 5 6. इन सेकेंड टॉस कुछ भी हो सकता है, बिकॉज नो कंडीशन वी हैव, कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी. क्रॉस व्हेन वी टॉस थर्ड टाइम, remember it should be 4 only. This is the condition. 4 appears on third toss, तो थर्ड टाइम पे तो 4 ही होना चाहिए. तो इसके एलिमेंट्स कौन से कितने होंगे, कौन से में लिखने की जरूरत नहीं. यू ऑल नो 114 124 164 214 226 224 314 324 364. ऐसे 6 6 36 1 36, 36 एलिमेंट्स इससे मिलेंगे, 36 एलिमेंट्स इससे मिलेंगे. राइट? चलो, इवेंट F is saying 6 and 5 appears respectively on first two tosses. मतलब फर्स्ट टाइम पे 6 और सेकेंड टाइम पे 5 ही होना चाहिए, बाद में कुछ भी हो हमें कुछ लेना देना नहीं. So during first toss, chalo, in the first toss the result should be 6. For the second toss it should be 5, and in third toss may be any result. तो इसके कौन से एलिमेंट्स है, नो नीड टू राइट. कितने एलिमेंट्स है, 1 1 जा 1 1 6 जा 6, so R is equal to 6. तो सभी इवेंट्स हो गई. जब कंडीशनल बात चलेगी तो हमें हमेशा इंटरसेक्शन तो लाना ही है. सो वी विल फाइंड ई इंटरसेक्शन F. ई इंटरसेक्शन F. अब दोनों में वो ऐसे एलिमेंट्स कौन से होंगे, तो E इज सेइंग द थर्ड एलिमेंट शुड बी 4.
अब इसमें थर्ड एलिमेंट 4 हो, ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? तो F इज सेइंग फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 6, सेकंड एलिमेंट शुड बी 5। अब उसमें 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 6, 5 6 5 6। तो थर्ड प्लेस पे 4 हो ऐसा एक ही एलिमेंट है। सो यहाँ पे एक जो इनमें से एक ही एलिमेंट कॉमन एलिमेंट है, एंड दैट इज 6 5 4. So number of elements for this event is 1. Now find all the probabilities. चलो P of E. P of E will be R by N. According to R by N is 36 by 216. 36 6 are. So 1 by 6. P of F. R by N, according to R by N, 6 by 216, that is 1 by 36. Now P of E intersection F, P of E intersection F, that is according to R by N, it will be 1 by 6. Now from 6 to 9 we have to find P of E by F, that is P of E intersection F, everything we have. चलो P of E intersection F is 1 by 6, sorry 1 by 36. P of F तो ये बनेगा 1 by 216, सॉरी that is 1 by 216 upon P of F 6 by 216. 216 चल बसे, 1 by 6 बचा सिर्फ. Clear point? So please write down this. So question number 9. See, ये भी बहुत बढ़िया सम है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बढ़िया है. मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर. लाइन अप का मतलब होता है कि क्यू में खड़े होना, एक लाइन में खड़े होना. सो मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर. सो इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम? तो देखो वी हैव 3 पीपल, मदर फादर एंड सन. तो मुझे 3 प्लेसेस फिलअप करने हैं. For the first place, we have 3 people, either mother or father or son. So in 3 ways we can fill first place. अब किसी एक को यहाँ खड़ा कर दिया तो बचेंगे 2 ही. फादर है तो सन मदर बचेगा, मदर है तो फादर सन बचेगा, सन है तो मदर फादर बचेगा. मतलब 2 पीपल में से किसी को भी यहाँ अरेंज करना हो तो इन 2 वेज वी कैन अरेंज. अब जो थर्ड बचा उसको तो कंपलसरी यहीं पे खड़ा होना पड़ेगा. सो हाउ मेनी वेज? 3 2 जा 6, 1 जा 6, 6 वेज वी हैव टू अरेंज दिस 3 पीपल. तो मैं इसका सैंपल स्पेस यहां पे बना रहा हूं. सी, अगर फर्स्ट प्लेस पे सन है तो सेकंड प्लेस पे मदर, थर्ड प्लेस पे फादर, और सन फादर मदर. तो आप देखो फर्स्ट प्लेस पे सन हो, ऐसे 2 वेज मिले. अब फर्स्ट प्लेस पे मैं मदर ले रहा हूं. इफ मदर इज ऑन फर्स्ट प्लेस सो सन फादर और मदर फादर सन, फादर सन. अगर फर्स्ट प्लेस पे फादर है, इफ फादर इज ऑन फर्स्ट प्लेस सो सन मदर और मदर सन. So this is the sample space and number of elements is 1 2 3 4 5 6. We have 6 elements in the sample space. Some conditions we have, some events we have. E. What is event E? Sun on one end. First end या last end ऐसा नहीं बोला है, should be on end. तो देखो यहाँ पे sun is on end, so it will come in E. Sun, mother, father. Here also sun is on end, son, father,
मदर, सन एंड पे नहीं है, सन एंड पे है, सो मदर फादर सन, सन इज नॉट ऑन एंड, हियर इज एंड, सो फादर mother son. So this is the event and it has 4 elements. Now event F, that is saying father is in middle, father is in middle. अगर father middle में है तो ऐसे केसेस कौन से बनेंगे? See here, father is in the middle, so S F M. Here also father is in middle, so mother father son. अब कहीं भी father middle में नहीं है, so it has 2 elements, so the number of elements in this event is R is equal to 2. Now E intersection F, E intersection F. चलो इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सन मदर फादर, सन मदर फादर नहीं है, सन फादर मदर है, सन फादर मदर है, देन मदर फादर सन है, मदर फादर सन, नाउ ओवर, सो इट हैज आल्सो 2 एलिमेंट्स, राइट? तो हमें 6 to 9 में इन ईच सम वी हैव टू फाइंड P of E by F. चलो फॉर P of E by F, P of E इंटरसेक्शन F, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे, सो P of F. चलो P of E इंटरसेक्शन F, तो हमें प्रोबेबिलिटी यहां पे लानी है. चलो व्हाट विल बी P of E? The P of E will be 4 by 6. P of F, P of F will be 2 by 6, and P of E intersection F, that will be 2 by 6. So by putting all the values, P of E intersection E, F is 2 by 6 and P of F is P of E by F, P of E intersection F is 2 by 6 upon P of F, that is also 2 by 6, that is also 2 by 6. तो अपॉन में 2 by 6, so the answer will be 2 by 6 upon 2 by 6, that is 1. Clear point? चलो क्वेश्चन नंबर 10. A black and a red dice, क्वेश्चन बराबर समझना बेटा. A black and a red dice are rolled, मतलब 2 डाइस एक साथ में थ्रो करते हैं हम. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. चलो सबसे पहले I am going to show the sample space for this event. You will be, देखो अब रेड डाई में थ्रो कर रहा हूं, तो सबसे पहले ब्लैक लेंगे. ब्लैक के लिए we will write B1 means 1 on black die, B2 2 on black die, B3 B4 B5 B6 cross. Now for red die we will write R1 R2 R3 R4 R5 and R6. So total number of elements in this sample space will be 6 6 are 36, n is equal to 36. Clear point? Right? Now see, find the conditional probability of obtaining a sum greater than 9. तो मैं यहां पे 2 इवेंट सपोज करूंगा. इवेंट A, the sum is greater than 9. Sum is greater than 9. कब? When given that the black die resulted in a 5, given that the black die resulted in 5, so event B में लूंगा यहां पे के black die resulted in a 5.
अब दोनों के एलिमेंट्स मुझे लिखने हैं। चलो इवेंट ए में कौन से एलिमेंट्स होंगे? सम इज ग्रेटर देन 9, सम शुड बी ग्रेटर देन 9। चलो इफ आई टेक b1 r1 सो सम विल बी 2, सो नहीं आएगा। b1 r2 b1 r6 तक कोई नहीं आएगा क्योंकि सम विल बी 7 ग्रेट, उससे ज्यादा नहीं होगा, सो ये नहीं आएगा। b2 में भी 8 आएगा, b3 में भी 9 आएगा, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम b4 क्योंकि ग्रेटर देन 9 लेना है तो b4 r6 में सम विल बी 10, so it will come b4 r6, then b5 r5 has sum 10 and b5 r6 sum will be 11 which is greater than 10, sorry greater than 9. After that we will take b6, so b6 r4, b6 r5 and b6 r6, b6 r6, so it has 1 2 3 4 5 6 elements in this event. Now event b, that will be black die is resulted in 5. What about red? कुछ भी नहीं बोला है, so no condition is there, so we will write in this way, black die resulted 5, so black die पे compulsory 5 होना चाहिए, और for red there isn't any condition, so we will write r1 r2 r3 r4 r5 r6। अच्छा, तो इसके एलिमेंट्स बनेंगे b5 r1, b5 r2, b5 r3, b5 r4, b5 r5 and b5 r6। तो इसके एलिमेंट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6, it has also 6 elements, right? Now find a intersection b. Whenever we have to find the conditional probability, always intersection should be there, equal to, चलो दोनों में हो ऐसे एलिमेंट्स, सी दोनों में हो ऐसे, तो b5 r1 नहीं है, b5 r2 वो भी नहीं है, b5 r3 वो भी नहीं है, b5 r4 भी नहीं है, b5 r5 it has, yes, b5 r5 दोनों में है, so b5, after that b5 r6 भी हमें मिलेगा, so b5 r6, clear point, done. Now see p of a, p of a means what? P of a means number of elements of event means 6 upon number of elements in sample space 36. P of b, P of b will be same 6 by 36, and P of a intersection b, see it has two elements only, so it will be 2 by 36. Now what we have to find? Find the conditional probability of obtaining a sum is greater than 9. मुझे एक ही probability लानी है when it is given that the black die is resulted 5, so b के रिस्पेक्ट में एक ही probability लानी है, so by the formula दोनों का intersection ऊपर, नीचे वाला नीचे, so it will be P of A intersection B is 2 by 36 upon P of B. P of B is 6 by 36. 36 चल बसे, so 2 by 6, that is 1 by 3. Clear point? See second part of this question 10. Sample space is same. It has 36 elements. तो सेकेंड पार्ट, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखना बेटा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8, मुझे सम 8 की प्रोबेबिलिटी लानी है, गिवन दैट
द रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इवेंट सपोज करेंगे। इवेंट ए, द सम ऑब्टेनिंग द सम 8, चलो इवेंट बी, व्हाट इज इवेंट बी? गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड, the red die resulted in a number less than 4। मतलब मुझे इसके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे पहले। चलो फॉर इवेंट ए विच आर द एलिमेंट्स ऑब्टेनिंग द सम 8। चलो ऑब्टेनिंग द सम 8 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सी। अगर मैंने b1 r1 लिया तो सम विल b2 विल नॉट कम। 6 में भी सम नहीं आएगा। 8 के लिए मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 2 से। b2 r6 इट गिव्स सम 8, सो b2 r6, b2 r6, then b3 r5, then b4 r4, then b5 r3, then b6 r2 over. So it has 1 2 3 4 5, only 5 elements. Now b is containing the red die resulted in a number less than 4. What about black die? Not given anything, so सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं भाई। तो ब्लैक में तो कुछ भी आ सकता है, b1 b2 b3 b4 b5 b6 क्रॉस। रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब होता है कि मे बी r1, मे बी r2, मे बी r3। सो कितने एलिमेंट्स इसे मिलेंगे? 6 3 18। सो नो नीड टू राइट ऑल 18 एलिमेंट्स, हम डायरेक्ट यहां से सपोज कर लेंगे, राइट। चलो अब फॉर द कंडीशनल इवेंट देयर शुड बी इंटरसेक्शन। चलो दोनों में हो ऐसे, देखो b2 r6 नहीं है, b3 r5 भी नहीं है, b4 r4 भी नहीं है, b5 r3 will come, b5 r3, b5 r3, after that b6 r2 भी आएगा, so b6, so it has only 2 elements, सब कुछ आ गया। चलो now p of a, what is p of a? 5 by 36 according to r by n. P of b, it will be 18 by 36. P of a intersection b, P of a intersection b, that is 2 by 36। सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे आओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम इज 8, मीन्स इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी लानी है। कब? when the red die resulted in a number less than 4, means it is event b, so find the probability of a with respect to b, that is p of a by b। by the definition दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे वाला नीचे। चलो what is p of a intersection b? 2 by 36 upon P of B, that is 18 by 36, it is 2 by 18, means it will be 1 by 9। clear point? So please write down this। चलो क्वेश्चन नंबर 11, a fair die is rolled। एक डाई को मैंने थ्रू किया, रोल किया, तो उसका सैंपल स्पेस बनेगा, ये आप सब जानते हो। 3 events are given E, F and G। Total there are 3 questions, उसमें से फर्स्ट और सेकंड
मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, मैं थर्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, उसमें भी दो पार्ट है, P ऑफ E यूनियन F बाई G एंड P ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई G। चलो पहले आई विल फाइंड दिस। फॉर दिस वी नो द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर मतलब E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपन नीचे वाला नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ G। अब मैं यहां पे दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। फॉर दैट सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड E यूनियन F। चलो एवरीथिंग वी हैव, E और F का यूनियन क्या होगा, 1 3 5 2 3, so it will be 1 2 3 5 1 2 3 5। अब G के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो E यूनियन F इंटरसेक्शन G। चलो इसमें हो और G में भी हो, ऐसे कौन सा एलिमेंट है, 1 इज नॉट कॉमन एलिमेंट, 2 इज कॉमन, 3 भी कॉमन है, 4 नहीं है, 5 है, सो इट इज राइट। So probability of E union F intersection G will be number of elements of event means 3 upon number of elements of sample space 6, so it will be 3 by 6 and P of G तो आपको सीधा सीधा मिलेगा P of G। चलो G has 4 elements, so 4 by number of elements of sample space, so by putting everything here, chalo P of E union G intersection F, that is 3 by 6 upon P of G, that is 4 by 6 by 6 by 6 चल बसे, तो आंसर मिलेगा हमें 3 by 4 ओवर एंड आउट। कितना इजी है, एग्जैक्टली लाइक दिस हियर। चलो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, सो P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G और नीचे वाला नीचे। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ये, फर्स्ट ऑफ ऑल E इंटरसेक्शन F। चलो E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 इज कॉमन एलिमेंट, सो इट हैज ओनली 1 एलिमेंट दैट इज 3। अब इसका G से इंटरसेक्शन लेना है, सो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। E इंटरसेक्शन F में तो एक ही एलिमेंट है एंड दैट इज इन G आल्सो, सो इट विल बी द इंटरसेक्शन मींस 3। P ऑफ G इज ऑलरेडी वी हैव, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये लाना है P ऑफ E इंटरसेक्शन F intersection G will be number of elements in event upon number of elements in sample space, so 1 by 6 P of G तो है। चलो ठीक है, सारी वैल्यूज, it is 1 by 6, P of G is 3 by 6, sorry 4 by 6 by 6 by 6 चल बसे, आंसर आया 1 by 4। कितने इजी सम्स। सो आज का लेक्चर हमारा बेटा यहाँ पे खत्म हो रहा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे चलेंगे, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।